Morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is Monday, that is 4th September, and we are here with the Hindu analysis of 4th September. Am I audible, guys? मेरी आवाज आ रही है? If I am audible, just write in the comments, yes sir, you're audible. आज Monday है, 4 September है. So let's start with today's article. So here is an article talking about Mr. 𝗟𝗂𝗙𝗪 meeting of floor leaders of India ahead of Parliament session, special session. Then fiscally imprudent policies, populism affect the poor, says Prime Minister. So these two are articles. We'll be discussing it. थोड़ा सा political है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग discuss कर लेते हैं इसको. So let's start. Okay. So Parliament special session. Actually, ये news आया था कि Parliament special session between 18 to 22 September to skip question hour, 0 hour. तो actually क्या है? Generally we have 3 sessions, right? अगर first जो होता है वो जनवरी फरवरी का राउंड होता है. What we call it as budget session, है ना? Then second is actually the winter session जो होता है ना, जुलाई अगस्त वगैरह में generally. Not winter, sorry, monsoon session. Monsoon session. And the third one generally happens in winter, जो कि नवंबर दिसंबर में होता है. That's called as winter session. Generally, this is the practice. Okay, this is the convention that we have 3 sessions. ठीक है. लेकिन बीच में अभी recently the government has decided कि सितंबर में there will be a special session will be there. ठीक है. So that will be from 18 to 22 September. देखो, actually I hope you are aware. अभी जो है recently G20 summit is also going to happen around 10 September के आसपास. So उसके बाद few days later we'll be having a special session of Parliament, right? Now there's a question for you, since we are talking about the different sessions of the Parliament. What can be the maximum gap between 2 sessions of Parliament? Your options are 3 months, 6 months, 4 months, 12 months. What is the right answer to this question? सबको like button press कर दो. Everyone please press the like button. Subscribe to our channel. सबको like button press कर दो. Maximum gap 2 session के बीच में maximum gap कितना हो सकता है? Where it is written? Yes. Maximum at can be, the maximum gap can be 6 months. Yes, B is the right answer. Yes, Gauri Sethi, Namra Aftab, Manu, Priya Chavan, Alia, you are right. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है sessions of Parliament, है ना? President shall from time to time summon each house to meet at each time as he thinks fit, but 6 months shall not intervene. मतलब 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, but president जब चाहे बुला सकते हैं session. Of course, president shall from time to time. See, so the president works on the advice of Council of Ministers. So recently, Council of Ministers advised him that there will be a session from 18 to 22 September. ठीक है? तो बीच में भी सेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन जो ये मैंने 3 बताया है, ये वाला 3, कि there are 3 sessions. This is a convention कि एक budget session होता है, then there is monsoon session and there is winter session. इसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है? सिर्फ इतना मेंशन है कि 6 months से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. The only thing is there should not be a gap of more than 6 months. Okay? Otherwise, there can be 3, 4, 5, 6 भी हो सकता है. ये एक convention है, वो चली आ रही है. So that is what is being practiced. Sir, what is question hour? Actually, जैसे question hour 0 hour जो होता है वो 12 बजे होता है. ठीक है? फिर question hour I think 11 बजे होता है. इसमें questions वगैरह पूछे जाते हैं. So there is a special time given where the oppositions are supposed to ask questions. ठीक है? तो वो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होता है, स्टार मार्क्स, सप्लीमेंट्री, एस्टेरिक्स लगा के, वो सब उतना नहीं जानना है. ठीक है? सो डिफरेंट, आई मीन स्पेशली दे हैव एक्चुअली दे कैन आस्क क्वेश्चंस. ठीक है? तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें प्रोविजन होता है ऑपोजिशन कैन आस्क क्वेश्चंस एंड ऑल. खैर, ओके, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर. सो 𝗟𝗂 कॉल्स मीटिंग ऑफ फ्लोर लीडर्स. सो अहेड ऑफ इंडिया इज एक्चुअली, आई होप यू आर अवेयर, द अलायंस ऑफ द ऑपोजिशन, है ना, अहेड ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन. So 18 से 22 September के बीच है. I hope you are aware that the news, the session will be there. And the government has not revealed the agenda of the session, but most likely it will be something about one nation, one election. शायद वो जिसको simultaneous elections कहते हैं, simultaneous elections कह दो, या or you can say one nation, one election कह दो. Okay, this you should be knowing it. Okay, yes. So basically, most likely, perhaps, शायद इसी के बारे में हालांकि गवर्नमेंट ने क्लियरली नहीं बताया, बट शायद perhaps इसी की बात होगी कि there will be talk discussion about one nation, one election and all, या जिसको simultaneous election कहते हैं. क्योंकि इसका मतलब होता है simultaneous election मतलब कि in the entire 28 states and the entire union level,
सब एक साथ चुनाव हो जाएगा, मतलब लोकसभा का एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली का एट वन टाइम। ठीक है, इसमें बहुत सारे इश्यूज भी है, पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है। ठीक है, सो नेगेटिव्स में ये है कि एक्चुअली इसको कराना बहुत मुश्किल है, राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई एक स्टेट में हांगे असेंबली हो गया तो, या प्रेसिडेंट रूल लग गया, देन दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो दीज आर द थिंग्स। पॉजिटिव्स में ये है कि पैसे बचेगा, द एक्सपेंडिचर विल बी लेस, है ना, मोर डेवलपमेंट में खर्चा होगा, मोर allocation to government actually for development project and all, है ना। तो बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारे डिबेट्स हैं, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, दैट डिबेट वो कभी और एडिटोरियल वगैरह आएगा, सो वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको लाने के लिए यू नीड टू ब्रिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, सो आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बहुत तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। Here, since the federal structure is getting affected, you need permission from एक तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। The first thing is it needs to be passed by special majority of both the houses, that is Lok Sabha and Raj Sabha. Plus you need ratification of half of the states, half of state legislative assembly, ये भी होना पड़ेगा। क्यों? Because it is affecting the federal structure. आधी स्टेट, we have 28 states, ठीक है, 14 states have to pass by simple majority। सिंपल मेजोरिटी से 14 स्टेट्स के लेजिस्लेचर को ये पास अप्रूव करना पड़ेगा that yes we are approving this one nation one election plan, then only actually this will be implemented। till 1967 we followed simultaneous election। ये एक्चुअली देखो 1967 मतलब जो 1952 से 67 तक simultaneous election था, वो बाय डिफॉल्ट था, इसलिए कि जब आजादी हुई फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ सब जगह एक साथ हुआ। ठीक है, फिर 1967 में अपने आप टूटना शुरू हो गया। ठीक है, so it was not, there was no such rule, but yes by default it was a simultaneous election till 1967। yes, so that is what actually it is, है ना। so ये आपको पता होना चाहिए। now since we are talking about this one nation one election, this is a question: who is the chairman of the committee to look into the feasibility of simultaneous poll to state assemblies and Lok Sabha? your options are Justice Ranjan Gogoi, Ramnath Kovind, Mr. Ramnath Kovind, Mr. 𝗟𝗲𝗴𝗏𝗀, जस्टिस एनवी रामन्ना। चेयरमैन बताना है उस कमेटी का जो फिजिबिलिटी मतलब चेक करेंगे वेदर इट इज पॉसिबल, है ना, वेदर इट इज पॉसिबल इकोनॉमिकली प्रैक्टिकली, है ना, तो उसी फिजिबिलिटी कहते हैं कि एक साथ चुनाव हो सकते हैं कि नहीं सारी जगह। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद। यस, गौरी सेठी, प्रांजलि, मानव, कुमकुम, नितिका, प्रिया चवन, यू ऑल राइट। यस, सो मिस्टर रामनाथ कोविंद, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विल बी द हेड ऑफ द कमिटी for simultaneous poll to Lok Sabha and State Legislative Assembly। ठीक है, इसमें लिखा है would require at least 5 constitutional amendments। कम से कम 5 जगह constitutional amendment करना पड़ेगा, बहुत जगह representation of people's act को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, so a lot of the places we have to amend the representation of people's act as well। okay, the next side में एक article थी, fiscal imprudence policies populism affect the poor। imprudence का देखो, prudence मतलब क्या होता है? प्रूडेंस का तो विजडम, समझदारी। ठीक है, इम्प्रूडेंस, इम्प्रूडेंट मतलब अनवाइज, है ना, यानी डिसीजन व्हिच इज नॉट बेस्ड ऑन विजडम, दैट्स कॉल्ड एज इम्प्रूडेंट। ओके, पॉपुलिज्म मतलब फेमस होने के लिए, पॉपुलिज्म, है ना, कि द एनी गवर्नमेंट इज टेकिंग डिसीजन जस्ट टू बिकम फेमस एंड नॉट फॉर डूइंग द रियल वर्क, उसको कहते हैं पॉपुलिज्म, यानी फेमस होने के लिए कोई काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार इकोनॉमिस्ट जो है ना लोन वेवर को कहते हैं कि पॉपुलिस्ट मेजर है, इट इज अ मेजर ऑफ पॉपुलिज्म और पॉपुलिस्ट मेजर है, दीज आर डेंजरस फॉर इकोनॉमी, जैसे उर्जित पटेल साहब ने उस टाइम पे कहा था 2017 में। देन दिस इज एन आर्टिकल, फार्म लोन राइट ऑफ विन वोट्स इन इंडिया बट मे हर्ट इकोनॉमी। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जैसे लोन वेवर है वो एक तरह का शायद एक तरह का पॉपुलिस्ट मेजर है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ठीक है, और भी बहुत सी चीज होता है जिससे मतलब जनता खुश हो जाए बट शायद रियल में कुछ फायदा उतना ना हो सके, सो दैट्स कॉल्ड एज पॉपुलिज्म। सो ये सब टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, सो पीएम मोदी टॉक्ड अबाउट इट, इसको आप पढ़ लेना कि फिस्कल इम्प्रूडेंस पॉलिसीज एंड पॉपुलिज्म अफेक्ट द पुअर, इससे गरीब पर असर पड़ता है, दैट इज व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट इट। ठीक है, सो इन द इंटरव्यू अहेड ऑफ G20, सो G20 से पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी बात कही। ठीक है, अगेंस्ट होल्डिंग मीटिंग एंड ऑल। ठीक है, सो जस्ट गो एंड रीड इट, बेसिक थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड इट। ओके, आज 6 बजे, as you all know, from every Monday we are having actually at 6 p.m. this session. So just download our app. ठीक है, go to CLAT section, and today at 6 p.m. on 4th September 6 p.m. we'll be having this revision. We are doing the revision of the previous questions that have already been asked in the Hindu analysis.
तो उसका रिविजन चल रहा है, इसको आप डाउनलोड उसको जरूर फॉलो कीजिए, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल. Okay, these are the test series. We are please go everyone attempt this test series. Okay, if you have any query, call on this number for 2024 and this is the 2024 crash course. ये next year के लिए 2025 के लिए जो लोग attempt करें, so these are our paid classes. ठीक है, 380+ hours of live session, 300+ hours of recorded videos are there. If you have any question, call on this number. इस पर call कीजिए. Okay, let's start with this one. देखो इसमें क्या है, a court's order and ASI survey are flawed. देखो ये दुष्यंत दावे, he is a Supreme Court lawyer. He has written his own opinion about the Ayodhya dispute on all. हम इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जो बेसिक फैक्ट्स है, फैक्ट्स याद रखना जरूरी है. ये इनका ओपिनियन है, आप अग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, बट द फैक्ट्स विच आर मेंशन इन दिस आर्टिकल विल बी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पहले को पता होगा ASI मींस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये शायद आपको पता होगा, है ना. सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज मेड एक्चुअली विद द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, है ना, प्रोटेक्टिंग ओल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट. इनफैक्ट ये एक DPSP भी है, मैंने बताया है कि नहीं. When I was teaching directive principle of state policy, I told you that ASI formation is an implementation of DPSP. शायद आपको पता होगा ना. सो मतलब ये ऑथर लिख रहे हैं कि ये फ्लॉड है, मतलब जो ASI का जो सर्वे था उससे रिलेटेड, अयोध्या केस से रिलेटेड, ये फ्लॉड है. फ्लॉड मतलब नॉट करेक्ट. सो दैट इज व्हाट द ऑथर्स ओपिनियन इज. Okay, now in this article he has talked about this. What is the name of the Ram Janmabhoomi Babri Masjid case? नाम बताना उस जजमेंट का. ठीक है, your options are Prabhu versus Kunte case, M. Siddiq versus Mahan Suresh Das case, Dr. Ismail Farooqi versus Union of India case, M. Siddiq versus VHP case. Your time starts now. बताइए उस केस का नाम क्या है जो 2019 में काफी फेमस हुआ था. अयोध्या केस is also it's famously called. हाँ, ASI founded by Alexander Cunningham. Very good, Pranjali. हाँ, so the right answer is M. Siddiq versus Mahan Suresh Das case 2019. ठीक है, so देखो यहाँ लिखा हुआ अभी, है ना, M. Siddiq डेथ, मतलब उनका डेथ हो चुका है. M. Siddiq versus Mahan Suresh Das case. Okay, so he is talking about the judgment that was passed on 9th November 2019 by 5 judge bench. ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए. सो ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट, देन ही इज टॉकिंग अबाउट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट. एक कानून के बारे में बात करें, दिस यू शुड बी नोइंग इट. इसको इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया. सो इट सेज बेसिकली दैट 15 अगस्त 1947 इज द कट ऑफ डेट. यानी इसके बाद जो जैसा था वैसा ही रहेगा. द एक्चुअली द स्टेटस ऑफ दैट प्लेस ऑफ वर्शिप शुड नॉट बी चेंज्ड. मान लो अगर कोई मस्जिद हो मस्जिद रहेगा, टेंपल है टेंपल रहेगा, चर्च है तो चर्च रहेगा. दिस विल नॉट बी चेंज्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947. मतलब हिस्टोरिकल डिस्प्यूट के रीजन से एंड ऑल. सो बेसिकली इन दिस केस एक्चुअली सम एक्सेप्शन वाज गिवन ऑन दिस. जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने से पढ़ लेना. प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इज इंपॉर्टेंट, सो यू शुड बी नोइंग इट बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी चूंकि केस चल रहा है इससे रिलेटेड, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपको पता होना चाहिए. ओके, यस, इसको पढ़ लेना. आई एम नॉट गोइंग वेरी मच इन डिटेल. एक साइड में आर्टिकल था, दिस इज रिलेटेड अगेन विद पॉलिटिकल आर्टिकल टॉकिंग अबाउट इंडिया अलायंस एंड ऑल, तो इसको भी पढ़ लेना. वी आर नॉट डिस्कसिंग मच इन डिटेल. चलो अब चलते हैं यहाँ पे, द राइज एंड फॉल ऑफ अ रशियन वॉरलॉर्ड. सो हियर बेसिकली द ऑथर इज रेफरिंग टू येवगेनी प्रिगोजिन, है ना, वैगनर ग्रुप चीफ. वैगनर ग्रुप चीफ जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई. सो द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट दैट. ऑन जून दिस ईयर, Yevgeny Prigozhin, he was in the news for actually marched his troop to within 200 kilometers of Moscow protesting against Russian defense ministries. So basically एक तरह का revolt माना गया था. It was a revolt led by Yevgeny Prigozhin, who was the head of a private military group called as Wagner. शायद आपको पता होगा, है ना. So private military group था, उसके हेड थे Yevgeny Prigozhin, that's called as Wagner group. Or yes, this was he is famously called as Putin's chef, but because he was considered as very close to Putin. Now, तो उसी के बारे में बता रहे हैं that Vladimir Putin took over power in 1999. Okay, तो Vladimir Putin has either been president or prime minister. कभी president रहे, कभी prime minister रहे. इतना जाना नहीं है डिटेल में, लेकिन yes, Vladimir Putin is in power for the past more than 20 years. Okay, so just have an idea about it. Then जब म्यूटिनी हुआ, जब रिवॉल्ट हुआ, so Belarusian president helped actually talk about Wagner, helped in talking with the Wagner group chief, है ना. तो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट उन्होंने हेल्प किया बात करने के लिए, so that the things should be sorted and all.
2 months later, Russian officials confirmed that Prigozhin died in a plane crash. अब 2 महीने बाद क्या हुआ कि उनकी प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई. I hope you are aware of these things. ये सब आपको पता होगा, हम लोग काफी दिन से जान रहे हैं ना. And at the same time, Dmitry Yudkin, वो भी उनके one of the founders में से थे. Then Valerica Chelopov, वो उनके close लोग थे. So these people also died in the same aeroplane crash. You should be knowing it. शायद आपको पता होगा, देखो actually he was actually going, देखो ये यूक्रेन है, ये वाला रशिया है ना. तो he was actually going from Moscow to St. Petersburg. दोनों फेमस जगह है काफी, ठीक है. सो यहीं पे कहीं पे जब टेक ऑफ किए तो कहीं पे यहीं पे रास्ता में प्लेन क्रैश हो गया एंड ही डाइड देयर. ओके, देखो यहाँ लिखा हो कहीं, he was going from Moscow to St. Petersburg that crashed on August 23 north of the capital and all. ठीक है, so just have an idea. इनके साथ और 2 लोग थे, इन दोनों का भी नाम यहाँ मेंशन है. ओके, एंड देन ये लास्ट ईयर जून की बात है. रोस्टोव ऑन डॉन, देखो ये लिखा ना, ये पता होना चाहिए. देखो जो इन्होंने रिवॉल्ट किया था वो रोस्टोव रिवर के आसपास, रोस्टोव सिटी के आसपास किया था. सो बेसिकली देयर इज अ डॉन रिवर, ये जो रिवर देख रहे हो ना, ये डॉन रिवर है. ओके, और यहाँ पर एक सिटी है रशिया का, दैट्स कॉल्ड एज रोस्टोव. सो ही लेड द रिवॉल्ट फ्रॉम दिस सिटी, रोस्टोव सिटी. और ये एज़ोव सी है, शायद आपको पता होगा, एज़ोव सी है मैंने बताया, ठीक है. सो ही लेड द रिवॉल्ट फ्रॉम हियर अगेंस्ट मॉस्को, ठीक है, ऑन द डॉन रिवर. ठीक है, लिखा ना, देखो रोस्टोव ऑन डॉन, मतलब डॉन रिवर है, रोस्टोव सिटी का नाम है. ओके, तो इसमें बहुत सारी चीज थी कि वेस्ट पुट द ब्लेम ऑन मिस्टर पुतिन, द क्रेमलिन हैज डिनाइड इट. तो वेस्ट ने कहा, वेस्ट में तो क्या होगा, यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज हैव सेड कि इट इज द पुतिन रिस्पांसिबल फॉर इट, यानी पुतिन ने करवाया, ऐसा वेस्ट ने कहा. द क्रेमलिन, क्रेमलिन जो होता है वो पुतिन के हाउस का नाम है, या रशियन प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज कॉल्ड एज क्रेमलिन, क्रेमलिन. ठीक है, सो जो रशिया की प्रेसिडेंट हाउस है उसने कहा डिनाइड एनी रिस्पांसिबिलिटी एंड लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन. तो जो पुतिन की ऑफिस है, यानी रशियन प्रेसिडेंट की ऑफिस, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें. सो दीस आर द थिंग्स. तो वही सब ब्लेम गेम चलता है कि वो उसको ब्लेम करेंगे, वो उसको ब्लेम करेंगे. रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, Prigozhin डेथ वुड बी वेलकम बाय सम ऑफ द by some and cause uneasiness in others in Russia and all. हम मतलब ये सब बता रहे हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ऑथर का कुछ ओपिनियन है कि Prigozhin के डेथ से रशिया को फायदा होगा कि नुकसान होगा, वही सब बता रहे हैं. ठीक है, so these are being told. So he was called as traitor, इसलिए कि जब म्यूटिनी किया था उसके बाद ना some people called him traitor and all. Okay, in fact there was speculation that Prigozhin himself had political ambition. तो इनको भी political ambition था, हो सकता है प्रेसिडेंट बनने की ख्वाहिश है, क्या है पता नहीं. So that is what perhaps the author is referring to. His death would have come as a relief to Russian defense minister. तो Russian defense minister के लिए relief की बात है, and general and all, that is what the author is talking about according to the author. फिर कुछ इवेंट बता रहे हैं कि just before the plane crash, their rival general Sergei Surkovin, he was a friend of Prigozhin and was being investigated for having advanced information about Wagner, was removed. तो उनके डेथ से, प्लेन क्रैश से पहले एक जनरल थे जो कि करीबी माने जाते थे Prigozhin के, उनको हटा दिया गया था. So these were the things the author is talking about. Many ordinary Russian citizens saw Prigozhin as a patriot for his exploit in Ukraine. लेकिन बहुत सारे रशियन सिटीजन Prigozhin को पैट्रियट, देशभक्त मानते थे, बिकॉज ऑफ कोर्स रशियाज इन्वेजन इन यूक्रेन में वैगनर ग्रुप का बहुत बड़ा रोल था. So some people believe it to be a patriot. ठीक है, तो some people, बहुत सारे लोगों को पैट्रियट मानते थे, बहुत सारे लोग ट्रेटर मानते थे. So these are the terms being used. ठीक है, so मतलब डिसएग्रीमेंट था लोगों का. Okay, so that is what is being talked about. Prigozhin's death will have little impact on the war in Ukraine because the Wagner had pulled out of Ukraine a few years ago. तो शायद यूक्रेन वॉर पे उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, इसलिए कि वैगनर ग्रुप ने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है यूक्रेन से. तो शायद मेन मिलिट्री लड़ रही होगी, might be something like that. However, it is impossible that Putin will get some more subservient to him to lead the group and strengthen his hold on it, or even during the group under defense ministry. तो ये सब बता रहे हैं कि अब इसमें इतना डिटेल जाना नहीं है, ठीक है ना. ये बहुत सारे एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर ये होता तो ये होता, तो शायद इसका बेनिफिट मिला, नहीं मिला, इतना जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, Wagner group will continue as a Russian proxy force in West Asian Africa. देखो एक्चुअली क्या है, जैसे इसको वेस्ट एशिया कहते हैं, जैसे here is India, ये इंडिया, ठीक है. सो वेस्ट एशिया ये वाला रीजन है, जैसे खास के सीरिया में कहा जाता है रशिया का रोल है वैगनर ग्रुप का. देन अफ्रीका में भी बहुत सारा रोल है. ठीक है, जैसे ये वाली फोटो आई थी जस्ट उनके डेथ से पहले, ही वाज इन अफ्रीका. ओके, सो ही, आई मीन रशिया हैज अ ह्यूज रोल इन द अफ्रीका रीजन एज वेल, स्पेशली द वैगनर ग्रुप. ठीक है, तो ये दोनों चलता रहेगा वेस्ट एशिया में, सीरिया वगैरह रीजन में, अफ्रीका रीजन में. ठीक है, ठीक है. So then overall the Prigozhin's death will have little impact on Russia's domestic politics or on Putin's influence and all.
तो बता रहे हैं कि इनकी डेथ से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इंटरनल पॉलिटिक्स में। इनफैक्ट हिज डेथ माइट इनेबल पुतिन टू एक्सर्ट ग्रेटर इन्फ्लुएंस। शायद हो सकता है कि इनकी डेथ से पुतिन को फायदा ही हुआ हो, या पुतिन जो है ज्यादा ग्रेटर रोल ले सके ऑन वैगनर ग्रुप पर। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, वी आर नॉट गोइंग इन कंस्पिरेसी थ्योरी कि किसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, नेचुरल वे से हुआ, किसी ने करवाया, सो वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड इन डिटेल अबाउट इट, बट उन्होंने ओवरऑल बताया कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एज 𝗟𝗄 because it is very much in the news. सबको लाइक बटन प्रेस कर दो guys, we are seeing only 10 likes, 35 is watching, so सबको everyone please press the like button. Roughly a week after ISRO soft landed a robotic lander and rover on the moon solar region, India launched another mission called as 𝗟𝗄। आपको पता होगा, ये तो हम लोगों ने बात किया है कि विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान रोवर got landed on the south pole of the moon and few days later we are having 𝗟𝗄 मिशन। ठीक है, चलो एक सवाल है, हाउ मेनी लाग्रांजे पॉइंट्स आर देयर इन कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ एंड सन? योर ऑप्शंस आर 3, 5, 7, 9। बताइए तो। यस, गौरी सेठी वेरी गुड। मानो ये सब मैंने बताया भी है, ये कौशल। हाँ, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, these are Lagrange point। ठीक है, अब why are Lagrange, why is Lagrange point so special? Your options are, ये भी मैंने बताया, there is no force on the body at this position, the effective force is 0, the gravity is absent here, none of the above। Your time starts here। क्या रीजन होगा? Yes, Banu, Priya, Chavan, Gauri, Seti. Yes. Net force is 0. Yes, Alia, Kausar, Pranjali, you are right. B is the right answer. Effective force या net force is 0। ये वाला नहीं है कि force ही नहीं लगेगा। आप पहले चीज समझना। देखो, मान लीजिए बॉक्स है, ओके, इस जमीन पर रखा हुआ है, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हम बोलेंगे इसमें फोर्स 0 है। लेकिन ये सेम बॉक्स है, इस पे 5 न्यूटन से इधर फोर्स लग रहा है और 5 न्यूटन से इधर फोर्स लग रहा है, तो दोनों इक्वल फोर्स लग रहा है, तो हम बोलेंगे इफेक्टिव फोर्स इज 0। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें फोर्स नहीं लग रहा है। So case 1 and case 2 are different. You have to understand it. In case 1 the force is 0, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। इसमें नेट फोर्स और इफेक्टिव फोर्स इज 0। आप समझ रहे हो ना, ये दोनों में फर्क होता है। हाँ, ऑल द फोर्स गेट कैंसल्ड आउट। यस, रिजल्टेंट इज 0। हाँ, यस, ये समझना। ये ना लिखिएगा कि ग्रेविटी एब्सेंट है ना, दिस इज नॉट करेक्ट। देखो, जो जैसे L1 में एग्जांपल बताता हूं, तो यहां से अर्थ इसको पुल कर रहा है ग्रेविटी से, और यहां से इसको सन पुल कर रहा है। ठीक है, और जब ये कोई चीज रोटेट करती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो यहां से अर्थ पुल कर रहा होगा, एफ अर्थ, एफ ई लिख दिया, एफ सन लिख दिया यहाँ पे। फिर जब ये घूमता है ना, तो कोई भी चीज अगर आप रस्सी से घुमाओगे ऐसे, इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एफ सी लिख दिया। शायद इस तरह कुछ होगा, एफ सी प्लस एफ अर्थ इज एफ एस। वो ऐसा है कि इस पोजीशन पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। उससे फायदा क्या होता है? उससे एनर्जी बचती है यहाँ पर, अगर कोई चीज आप भेजोगे तो। सो व्हेन वी आर सेंडिंग एट L1, लेट्स से वी आर सेंडिंग 𝗟𝗄, तो यहाँ पर ना बहुत कम एनर्जी में वहां पे स्टे कर जाएगा, बस इसलिए कि उस पर नेट फोर्स इफेक्टिव फोर्स 0 है। ऑल द फोर्स गेट कैंसल्ड आउट, इस तरह कि सारा कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, आप समझते हो कि ये बेसिक चीज है ना। हाँ, यस, फोर्स इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स बट इट गेट्स कैंसल्ड आउट, सो दैट्स L1। सेम चीज L2 में होता है, L5 में होता है, L4 में होता है, L3 में होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, अगर आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे मतलब इस तरह से दिखाया गया है, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। ओके, नाउ होता क्या, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द टू लार्ज बॉडीज एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस ईच अदर, वही चीज जो मैंने बताया। ठीक है, नाउ कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए, L4 एंड L5 एक्ट ईच एज थर्ड वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे F1, F2 और F3 तीनों एक लाइन में, तीनों के साथ ऐसा होता है। L2 के साथ भी ऐसा होता है, तो यहाँ से अर्थ खींचेगा, फिर यहाँ से सन खींचेगा, और इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली L4 पे भी होता है। नाउ L1, L2 और L3 जो एक लाइन में ऐसे अच्छे से लिखते हैं क्लियरली। ओके, नाउ एक और चीज है, L4 जो है वो इसके साथ, किसके साथ, सन के सेंटर के साथ और अर्थ के सेंटर के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल होता है।
तो इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सिमिलरली L5 जो होता है सन के सेंटर के साथ और अर्थ के सेंटर के साथ इक्वल ट्रायंगल बनाता है, मतलब लाइक दिस, मतलब ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ठीक है। हाँ, यूनिवर्स इज अ रियल सिमेट्री, यस। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लाग्रांजे पॉइंट न्यूज में है, सो दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम लाग्रांजे पॉइंट, तो अब कैसा भी पूछेंगे घुमा फिरा के तो आप बना लोगे, ठीक है। सो जैसे हम लोग बता रहे हैं अभी, ये राइट नाउ वी आर टेलिंग कि आदित्य L1 यहाँ गया है। लास्ट ईयर एक और मिशन गया था, आपको शायद याद होगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये यहाँ गया था L2 पे, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, याद है? You remember that? So it was actually on the L2, ठीक है। Okay, just have an idea. What is the distance between Earth and L1 point? Your options are 1.5 billion kilometer, 1.5 million kilometer, 1.5 trillion kilometer, 1.5 लाख किलोमीटर। बताइए, जो अर्थ है और L1 पॉइंट है उसके बीच की दूरी कितनी है? यस, व्हाट इज द राइट आंसर? 1.5 कौन सा वाला ऑप्शन बताना है, ठीक है। स्लाइटली कंफ्यूजिंग बट यस, हाँ, इट रिप्लेस हबल टेलीस्कोप, यस प्रांजलि, और हाँ। सो 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 1.5 into 10⁶, 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। सो किलोमीटर, सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस, यश गुप्ता, आलिया, रंजना, अनन्या, यू आर राइट। अच्छा, एक चीज ख्याल रखिएगा, समटाइम्स आई हैव सीन पीपल से कि आदित्य मिशन जाके सन पे लैंड करेगा। प्लीज डू नॉट यूज दिस लैंग्वेज। आदित्य मिशन इज नॉट गोइंग टू लैंड ऑन सन। सन पे कुछ लैंड नहीं हो सकता, वो जल के राख हो जाएगा, ठीक है। मून पर लैंड हुआ, ये बात सही है, यहाँ पे बगल में मून है और सन बहुत ज्यादा दूर है, ओके। सो बी केयरफुल हियर, सो डू नॉट से कि इट इज गोइंग टू लैंड ऑन सन और डू नॉट यूज सच लैंग्वेज, ठीक है। सो जस्ट हैव एन आइडिया, और ये इस पर रिसर्च करेगा, वो सन ही पर रिसर्च करेगी, ये बात सही है, सन्स कोरोना क्रोमोस्फेयर एंड ऑल, दैट्स ट्रू, बट इट इज नॉट लैंडिंग ऑन द सन, इट्स नॉट पॉसिबल, सो डू नॉट यूज दैट वर्ड एंड ऑल, ठीक है। इसी को बात करें कि जैसे सॉफ्ट लैंडिंग हुआ अभी मून पर एंड ऑल, देन आदित्य वी आर सेंडिंग इट एट L1। आदित्य का मतलब ही होता है सूरज हिंदी में, हाँ, यस, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये मैंने निकाला है, अगर आप चाहो तो आफ्टर द क्लास इज ओवर टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड इट, ठीक है। इसमें क्या, जैसे सन्स कोरोना होता है ना, सन्स में जो ऐसे निकलता है उसको कोरोना कहते हैं, कोरोनल डिस्चार्ज एक टर्म होता है, आपको पता होगा शायद। फिर सोलर विंड होता है, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें और से बहुत सारी प्लाज्मा होती है, बाहर वाला लेयर क्यों गर्म होता है अंदर से, मतलब बहुत सारी चीजें, क्रोमोस्फेयर एंड ऑल, सो दे विल बी रीडिंग अबाउट इट, यस। हाँ, 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जो कि लगभग 1% है अर्थ सन डिस्टेंस का, ठीक है। and will see approximately from earth directed towards the sun which is about 1% of the earth sun distance। देखो, यानी ये जो बता रहे हैं, जो टोटल डिस्टेंस है ना यहां से यहां का, उसका सिर्फ 1% है, हालांकि मतलब मैप ठीक से नहीं बना हुआ है, यानी बहुत करीब में है ये, ओके। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट। सो L1 विल बी वेरी मच क्लोज टू अर्थ एज कंपेयर टू दिस, ना। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन में, यस, हाँ। तो यहाँ पे इसरो वालों ने बनाया है यही सेम वेबसाइट पर, मतलब उनकी वेबसाइट पर से मैंने उठाया, तो यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे L1 है, यहाँ पे सन है, ठीक है, यस, ओके। देन एक चीज और पढ़िएगा, गो एंड रीड अबाउट कोदाई-कोनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, इसको पढ़िएगा जाके, ठीक है। सो गो एंड रीड इट, यस, हाँ। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल, दीज आर द थिंग्स। कुछ पेलोड्स लगे, आई थिंक 7 के आसपास, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। फ्यूचर क्लासेस में विल बी आस्किंग मोर क्वेश्चंस परहैप्स ऑन दिस, ठीक है, ठीक है। सो सोलर विंड की बात कर रहे हैं एंड ऑल दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड। लाग्रांजे पॉइंट पर आएगा, 1.5 मिलियन किलोमीटर है, मैंने बता दिया है, सब दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड इट, है ना, ठीक है। और कुछ टेकन टुगेदर सीम्स रिलेटिवली सिंपल एंड ऑल, ठीक है। अगर और कुछ आएगा तो विल बी डिस्कसिंग इट, ठीक है। इसको जस्ट रीड इट, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट इट। नाउ मेजरिंग हंगर अक्रॉस द स्टेट, चलो हंगर की बात हो रही, सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? योर ऑप्शंस आर 107, 97, 101, 105। बताइए तो। हाँ, कोदाई कनाल इज इन तमिलनाडु, इट्स अ हिल स्टेशन, वेरी गुड कागजी, KXYZ, यस, गुड, हाँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी अभी रिसेंटली? यस, वेरी गुड, 107, गौरी प्रिया चवन, प्रांजलि प्रिया, यू ऑल राइट, हाँ, 107 आउट ऑफ 121। बाकी कभी देख लेना, बट अपने कंट्री का याद रखना जरूरी है, पूछते हैं एग्जाम में रैंकिंग, ठीक है। सो 107 इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। आई थिंक लास्ट ईयर पूछा था ये ना CLAT में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, they've asked it, so they can ask it again, okay। That is what he's talking about, the global hunger index, rank India 107 and all. It provides composite measures and tracks undernourishment, hunger, national level, state level, ये सब dimensions है, that is what he's talking about. Now who releases this global hunger index? Your options are Reporters Without Borders, UNCTAD,
wealth, hunger, health and concern worldwide, none of the above. हाँ, your time starts now. अच्छा, ये लेटर भी आया था. हाँ, बताइए. ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है? हाँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता है, ये भी पता होना चाहिए. Here the right answer is option C. Yes, 𝗟𝗏𝗴𝗏 𝗟𝗄 𝗙𝗏𝗀 𝗟𝗏𝗀𝗏 you are right. Nika Singh है ना. Wealth, hunger, health and concern worldwide. हाँ, C is the right answer. 𝗟𝗏𝗴𝗏 yes. हाँ. ओके, तो ये चारों ये है, उसी की बात की ऑथर ने, उसे डिस्कस किया. यहाँ पे हम उनके वेबसाइट से दिखा दे रहे हैं. ये 4 मेन पैरामीटर्स है, 4 मेन पैरामीटर्स: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी. अगर आप गौर से देखोगे ये तीनों चाइल्ड से रिलेटेड है, बस एक ही है जो चाइल्ड से रिलेटेड नहीं है, अंडर नरिशमेंट. सो दे हैव डिफाइंड इट. ठीक है, कि क्या होता है अंडर नरिशमेंट, उनकी वेबसाइट पे जाओगे पढ़ोगे. चाइल्ड स्टंटिंग मतलब क्या होता है? हाइट कम होना. हाँ, लो हाइट फॉर एज, यानी जितना एज के हिसाब से हाइट होनी चाहिए उतना नहीं है. वेस्टिंग का मतलब होता है कि अंडर एज हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, यानी जितनी हाइट है उस हिसाब से जो वेट होना चाहिए वो नहीं है. दैट्स कॉल्ड एज वेस्टिंग. ये सब टर्म थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. मोर्टेलिटी तो पता होगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी, अगर 5 साल से अंदर के उम्र में बच्चे की डेथ हो जा रही है, दैट्स कॉल्ड एज चाइल्ड मोर्टेलिटी. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट. द नॉर्दर्न प्लेस ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन. ये अगला एडिटोरियल है. आपको पता होगा शायद दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, यू नो दीस थिंग्स एंड ऑल. तो उसी का वो चार्ट वगैरह बनाए कि नॉर्थ इंडिया मतलब ये सब रीजन में, ठीक है, काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. देखो नॉर्दर्न प्लेन्स में नेशनल एवरेज से ज्यादा है नॉर्दर्न प्लेन्स में पोल्यूशन. PM 2.5 आप समझते हो इसका मतलब? PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5, यानी इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर होगा, यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर. इतना छोटा होता है. तो जितना छोटा उतना डेंजरस. मतलब PM 10 से ज्यादा डेंजरस जो होता है PM 7.5 और उससे ज्यादा डेंजरस होता है PM 2.5. द मोस्ट डेंजरस इज PM 2.5 इस तीनों में, बिकॉज जितना छोटा होगा उतना आसानी से नाक के अंदर चला जाएगा. ओके, सो बी केयरफुल. द नोज और द नाक में हेयर्स होते हैं वो स्टॉप नहीं कर पाएंगे. सो द it can easily go from the nose inside the lungs and all. So that is why the smaller the material is, the smaller the pollutant is, the more dangerous it is. हमेशा याद रखना, ठीक है. हाँ, so that is what you should be knowing. डिबेट है वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या फायदा है, नुकसान है, आप इसको एक बार पढ़ लेना. ठीक है, क्या BS चौहान कमेटी पहले बनी थी जो लॉ कमीशन थी, उसने क्या रिकमेंड किया. सो दीज आर द थिंग्स. इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आते हैं, फेवरेबल और आर्ग्यूमेंट, अपोजिट आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो ये सब डिबेट वगैरह चलता रहता है, आप इसको पढ़ लेना थोड़ा सा. ठीक है, गो एंड रीड इट. आदित्य L1 हेल्दी न्यू ऑर्बिट सेज इसरो. ठीक है, अब मतलब इसरो ने ये बताया कि जो लॉन्च किया गया. अच्छा, इस ट्रैक के बारे में आप थोड़ा सा पढ़िए. ISTRAC, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क वर्क इन बेंगलुरु परफॉर्म द मैन्यूवर एंड ऑल. ठीक है, तो ये हेल्दी है, मतलब ठीक ठाक सब कुछ बढ़िया चल रहा है. एवरीथिंग इज फाइन. मोस्ट लाइकली थिंग्स आर ऑन द टाइम एंड इट विल रीच ऑन द टाइम. ठीक है, वक्त पर पहुंच जाएगा. आई थिंक 3-4 महीना लगेगा उसको पहुंचने में, थोड़ा टाइम दूर लगेगा ना. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, है ना. एक और है ये वाला थोड़ा सा. एक तो हेड ऑफ टॉक्स ऑन ग्रेन डील, रशिया अटैक्स यूक्रेन पोर्ट. ये मैंने बताया है. देखो, यूक्रेन ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, आई हैव डिस्कस्ड इट. अगर आपको नहीं पता है तो जाके पढ़िए इसको. एक्चुअली लास्ट ईयर जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक it was in the news. After July 2023, Russia has actually withdrawn from this. Why it is important? These things we have already discussed it, but you should be knowing it. एक और जो है वो ये है, ये थोड़ा सा न्यू न्यूज है. G20 meet visits by Lavrov, Macron add to the diplomatic buzz in Dhaka. ठीक है, ढाका मतलब बांग्लादेश की कैपिटल. ओके, नाउ लैवरोव जो है ना रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है और मैक्रोन जो है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट है. ठीक है, तो ये दोनों जो ढाका जाने वाले, यानी फ्रांस की मतलब ये कैपिटल जाने वाले G20 से पहले. अब देखो, जैसे ढाका जाएंगे तो ढाका से बगल में, तो जैसे मान लीजिए लोग आएंगे तो यहाँ पे कहीं पे ढाका होगा, है ना, तो वहां से मान लो फ्रांस से आएंगे, रशिया से आएंगे, फिर यहाँ से जो है फिर यहाँ आएंगे वापस G20, मान लो ऐसा कुछ. मतलब G20 समिट से जस्ट पहले दे आर गोइंग टू ढाका. नाउ दिस इज समथिंग स्पेशल कि व्हाई दे आर गोइंग टू ढाका. So the first fortnight of September is appearing hectic in Dhaka's diplomatic calendar with multiple high-profile visits and agreements that are being scheduled. The series is expected to start with Foreign Minister Lavrov in September 7, और शायद उसके बाद वो G20 summit attend करें, and on September 11 French President
तो यही है कि मतलब कि G20 के आसपास ही लोग रहेंगे, मतलब G20 दिल्ली में हो रहा है ना अभी, तो उसी के आसपास ये लोग यहाँ ढाका भी आएंगे. सो व्हाई इज ढाका सो स्पेशल? यू आर सपोज टू फॉलो इट. इसको आप फॉलो कीजिएगा कि क्यों दो बड़े जगह के सीनियर मिनिस्टर्स, मतलब एक तो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, एक फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, व्हाई दे आर कमिंग टू ढाका बांग्लादेश, व्हाट इज सो स्पेशल. प्लीज फॉलो इट, प्लीज रीड दिस, बट है ना, यू शुड बी नोइंग इट. इंडियन पेरेंट्स की तरह सब जगह होके आएंगे आसपास. ओके ठीक है. यस. ओके. So just go and read it, why it is important. Just have an idea. Okay. So this is all about today's class, guys. आज download करो app, go to CLAT section. Today at 6 PM I'll be meeting you with the free session on revision of the Hindu analysis questions. तो आज 6 बजे शाम में मुलाकात होगी ऐप पर. Please do follow me. That would be very, very beneficial for you. So please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.